जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Assalamu alaikum. Today we are going to learn the topic simple linear regression, and we are in the course of Introduction to Statistics. We are following the book of Anderson and Sweeney. The book name is Statistics for Business and Economics. This is chapter number 14, and the topic today that we are going to learn is simple linear regression. So let's discuss the simple linear regression in practice. Alliance Data Systems (ADS) provides transactions processing, credit services, and marketing services for clients in the rapidly growing customer relationship management industry. ADS clients are concerned in four industries, that is retail, petroleum or convenience stores, utilities, and transportation. In 1983, Alliance began offering end-to-end credit processing services to the retail, petroleum, and casual dining industries. Today, they employ more than 6,500 employees who provide services to clients around the world, operating more than 140,000 point of sale terminals in the US alone. ADS processes in excess of 2.5 billion transactions annually. The company ranks second in the US in private label credit services by representing 49 private label programs with nearly 72 million card holders. In 2001, ADS made an initial public offering and is now listed on the New York Stock Exchange. As one of its marketing services, ADS designs direct mail campaigns and promotions, right? तो अब ADS कर क्या रहा है? ADS डिजाइन करता है डायरेक्ट मेल campaigns और promotions को. With its database containing information on spending habits of more than 100 million customers, ADS can target those customers most likely to benefit from a direct mail promotion. क्योंकि एडीएस के पास 100 मिलियन कस्टमर्स की जो स्पेंडिंग की हैबिट्स है उसकी इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो एडीएस जो है वो आपकी टारगेट जो ऑडियंस होती है उनको डायरेक्ट मेल प्रमोशंस भेजते हैं. ठीक है. The analytic development group uses regression analysis to build models that measure and predict the responsiveness of customers to direct market campaigns. जो एनालिटिक डेवलपमेंट ग्रुप है वो क्या करता है, वो रिग्रेशन एनालिसिस लगा के मॉडल लगा के रिग्रेशन एनालिसिस का वो प्रिडिक्शन करता है कि जो हम लोग मार्केट कैंपेन्स कर रहे हैं उसका कितना को फ़ायदा होगा. Some regression models predict the probability of purchase of individual receiving a promotion, and other predicts the amount spent by those customers making a purchase. For one particular campaign, a retail store chain wanted to attract new customers. ठीक है, अब एक एग्जांपल ली जा रही है कि जो एक स्टोर चेन है वो नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो वो करते क्या हैं. To predict the effect of the campaign, ADS analysts selected a sample from the customer database, sent the sampled individual promotional materials, and then collected transactional data on the customer response. Sample data were collected on the amount of purchase made by the consumers responding to the campaign, as well as a variety of consumer-specific variables thought to be useful in predicting sales. The consumer-specific variable that contributed most to the predicted the amount purchased was the total amount of credit purchases at related stores over the past 39 months. ADS analysts developed an estimated regression equation relating the amount of purchase to the amount spent at related stores. तो हुआ क्या, उन्होंने सैंपल डेटा कलेक्ट किया. सैंपल डेटा कलेक्ट करने के बाद उन्होंने
इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, फिर उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर रिग्रेशन एनालिसिस लगाया और देखा कि कौन सी इक्वेशन जो है उसके थ्रू उनकी स्पेंडिंग डिपेंड होगी। ठीक है, जब प्रमोशन की जाएगी तो वो कौन सी होगी। तो जो वाई है इसमें वो अमाउंट ऑफ परचेज है कि आप कितना परचेज करेंगे, और एक्स जो है वो अमाउंट स्पेंट एट रिलेटेड स्टोर्स है। तो देखें, हमारे घरों में जो बिल्स भी आते हैं ना, वो भी एक रिग्रेशन इक्वेशन के साथ डेवलप होते हैं। कैसे? आप अगर पीटीसीएल का बिल देखें ना, तो पीटीसीएल के बिल में वाई जो है वो आपका बिल अमाउंट है। अगर उस बिल के अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट है होती है, जिसका ये होता है, ये जो फिक्स कॉस्ट होती है, प्लस हर कॉल के डिफरेंट चार्जेस होते हैं। ठीक है? तो आपका बिल जो है वो भी रिग्रेशन इक्वेशन की बेस के ऊपर कैलकुलेट होता है। ठीक है जी। सेकेंडली, आप आपने एक दुकान खोली है, आप उसकी प्रमोशन करना चाहते हैं, आप उसकी एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट जो होगी वो आपकी जो सेल होगी वो आपकी वाई होगी। ठीक है, फिर आपकी इक्वेशन डेवलप होगी जिसमें आप जितने सेल्स के ऊपर पैसा लगा, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर पैसा लगाते जाएंगे, उतनी आपकी सेल्स जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। Managerial decisions often are based on the relationship between two or more variables. जो मैनेजरियल डिसीजंस होते हैं वो दो या दो वेरिएबल से ज़्यादा की बेस के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आफ्टर कंसिडरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर एंड सेल्स, ठीक है, a marketing manager might attempt to predict sales for a given level of advertising expenditure. जो मार्केटिंग, आप सपोज करें मार्केटिंग मैनेजर हैं, आपको सेल्स और आपकी जो है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर आपके पास है और आप अपनी सेल्स को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कितने को मैं पैसे अगर एडवर्टाइजिंग पे लगाऊंगा तो इतनी मेरी सेल्स जनरेट होंगी। ठीक है। In another case, a public utility might use the relationship between the daily high temperature and the demand for electricity to predict electricity usage on the basis of next month anticipated daily high temperatures. जब भी गर्मियां आ रही होती है ना, ठीक है, तो हमारी भी यहाँ प्रिडिक्शन होती है कि हमें कितनी जो है वो बिजली चाहिए आने वाले सालों के लिए बनाने के लिए हमारी कंजप्शन की बेस के ऊपर। तो दो वेरिएबल्स के जब रिलेशनशिप आप यूज कर रहे होते हो, तो उस सिनेरियो में आपका सिंपल लीनियर रिग्रेशन जो है वो बड़ा काम आता है। Sometimes a manager will rely on intuition to judge how two variables are related. However, if data can be obtained, a statistical procedure called regression analysis can be used to develop an equation showing how the variables are related. तो मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग हमें तो जस्टिस होता है ना दो वेरिएबल्स के दरमियान जानने का, ठीक है, कि मतलब कुछ जाने कि आपस में लिंक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो स्टेट और हमारे पास हम उस उन दोनों वेरिएबल्स के मुतालिक दोनों चीज़ों के मुतालिक अगर तो डाटा ले पाए, तो फिर एक स्टेटिस्टिकल प्रोसीजर है जिसका नाम रिग्रेशन एनालिसिस है, जिसके थ्रू हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि क्या रिलेशनशिप है इन दो वेरिएबल्स के दरमियान। ठीक है जी। इन रिग्रेशन टर्मिनोलॉजीज, द वेरिएबल बीइंग प्रिडिक्टेड इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। जिसके मुतालिक हम लोग जानना चाह रहे होते हैं, ठीक है, वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, जिसको जिसके मुताबिक आप कुछ प्रिडिक्ट करना चाह रहे हो, कुछ जानना चाह रहे हो, वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। द वेरिएबल और वेरिएबल्स you being used to predict the value of the dependent variable are called independent variable। और जो वेरिएबल्स हैं या वेरिएबल जो हैं जो मदद कर रहे हैं आपके डिपेंडेंट वेरिएबल की प्रिडिक्शन के मुताबिक, उनको आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ठीक है,
दोबारा सुनिएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जिनके मुतालिक आप कुछ प्रिडिक्शन ड्रॉ करना चाह रहे होते हैं, जिनके मुतालिक आप जानना चाह रहे होते हैं, उनको आप डिपेंडेंट वेरिएबल करते कहते हैं। और जो वेरिएबल्स आपको मदद देते हैं, जिनके मुतालिक आप जानना चाह रहे होते हैं, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, in analyzing the effect of advertising expenditure on sales, a marketing manager desired to predict sales would suggest making sales in the dependent variable। ठीक है, अब देखिए, एक मार्केटिंग आप एनालाइज करना चाहते हैं किसके इफेक्ट को, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर के इफेक्ट को आप सेल्स के ऊपर जो है वो जो उसका इफेक्ट है उसको एनालाइज करना चाहते हैं। तो इस सूरत हाल में जिनके मुतालिक आप जानना चाह रहे हैं वो क्या है, वो आपके सेल्स हैं। जिनके मुतालिक आप जानना चाह रहे हैं कि मैं कितना पैसा लगाऊंगा, कितनी बढ़ेंगी, तो आप उनके मुतालिक आप जानना चाहते हैं, उनके मुतालिक आप प्रिडिक्शन करना चाहते हैं। तो जो आपकी सेल्स हैं वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जबकि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि वो मदद कर रहा है, वो आपको वहां पे आप पैसा लगाएंगे और आप सेल्स को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि आपने 1000 रुपया लगाया तो आप उसके 1000 रुपया लगाने के बाद आप अपने सेल्स को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो सेल्स है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। और इन स्टैटिस्टिकल नोटेशन y denotes the dependent variable and x denotes the independent variable। तो स्टैटिस्टिकल टर्मिनोलॉजीज में क्या होता है, जो आपका y होता है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो आपका x होता है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिनोट कर रहा होता है। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी। और रिग्रेशन का फिनोमेना जो है वो सबसे पहले स्टडी किया गया था by the statistical methods used in studying the relationship between two variables were first employed by Sir Francis Galton 1822 to 1911। Galton was interested in relationship in studying the relationship between a father's height and a son's height। ठीक है, तो जब वो इसके मुतालिक इंटरेस्टेड था तो उस टाइम पे सबसे पहले जो है वो रिग्रेशन फिनोमेना डेवलप हुआ था और इम्प्लॉयड हुआ था। In this chapter, we consider the simplest type of regression analysis involving one dependent variable and one independent variable, in which the relationship between the variable is approximated by a straight line. It is called simple linear regression regression analysis involving two or more independent variable is called multiple regression or multiple analysis। अच्छा देखें, इस जो हमारा कोर्स है इसके अंदर हम लोग बड़ी सिंपल सारी जो रिग्रेशन है ना वो पढ़ेंगे। सिंपल रिग्रेशन से क्या मुराद है कि उसमें हमारे पास सिर्फ एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक ही हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, और उनको हम लोग सिंपल रिग्रेशन कहते हैं। और अगर वो रिग्रेशन का रिलेशनशिप स्टेट हो, ठीक है, तो उसको फिर हम लोग लीनियर कहते हैं। अब ये लीनियर क्या है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। और अगर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल एक हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से ज्यादा हो तो फिर हम लोग उनको मल्टीपल रिग्रेशन कहते हैं। लेकिन हम लोग जो है वो इस चैप्टर में सिंपल रिग्रेशन ही पढ़ेंगे। अच्छा जी, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। Armand Pizza Parlors is a chain of Italian food restaurants located in a five-state area. Armand's most successful locations are near
कॉलेज कैंपस। आर्मड पिज़्ज़ा पार्लर जो है वो इटालियन फूड है और वो 5 जगहों पे उसका शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। जो आर्मड की सबसे मोस्ट सक्सेसफुल लोकेशन है ना, वो कॉलेज कैंपसेस के साथ है। ठीक हो गया जी? The managers believe that quarterly sales for these restaurants, denoted by Y, are related positively to the size of student population. कैसे? वो कहते हैं कि हमारी जो सेल्स है ना, सेल्स होगी आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल Y, वो पॉजिटिव रिलेट कर रही है किसके साथ पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट पॉपुलेशन पे, X के ऊपर। मतलब क्या हुआ, अगर स्टूडेंट्स की तादाद ज्यादा होगी तो सेल्स क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएंगी। अगर स्टूडेंट की तादाद कम होगी तो सेल्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी। ठीक है, that is student restaurants near campuses with a large student populations tend to generate more sales than located near campuses with a small student population. Using regression analysis, we can develop an equation showing how the dependent variable y is related to the independent variable x. अब हम लोग बात तो कर रहे हैं कि जी जहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा होंगे वहाँ पे सेल ज़्यादा होगी, जहाँ पे स्टूडेंट कम होंगे वहाँ पे सेल कम होगी। लेकिन अगर आपको किसी को बताना पड़ जाए तो वो तो ये समझ तो आ रही है कि हाँ जी जहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा होंगे वहाँ पे सेल ज़्यादा होगी, जहाँ पे स्टूडेंट कम होंगे वहाँ पे सेल कम होगी। लेकिन कोई मैथमेटिकली जब तक आपके पास कोई चीज़ नहीं होगी, जो कोई इक्वेशन नहीं होगी जहाँ से हम लोग प्रिडिक्ट कर पाएंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, या अब उन्होंने एक और शॉप खोलनी है एक और कैंपस के नजदीक, तो उनको कैसा पता चलेगा कि यहाँ पे हमारी सेल्स कितनी होगी। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, रिग्रेशन फिनोमेना लगाया। ठीक है, रिग्रेशन फिनोमेना ने क्या किया, उनको एक मैथमेटिकली इक्वेशन डेवलप करके दे दी। उस इक्वेशन से क्या होगा, उनको मदद मिलेगी कि जहाँ पे भी वो कैंपस खोलना चाहेंगे वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की तादाद रखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमारी सेल्स इतनी हो सकती हैं। ठीक है जी, रिग्रेशन मॉडल एंड रिग्रेशन इक्वेशन। In the Armand Pizza Parlor example, the population consists of all the Armand restaurants. For every restaurant in the population, there is a value of X, that is student population, and a corresponding value of Y, quarterly sale. The equation that describes how Y is related to X and an error term is called a regression model. The regression model is used in simple linear regression. जो आपका सिंपल रिग्रेशन मॉडल है ना, वो y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स प्लस जो एप्सिलॉन है डेट इज कॉल्ड एरर। और हमने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बात की, नॉर्मल, फिर हम लोगों ने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में बात की थी कि इस इक्वेशन में देखिए हमारे पास अगर बीटा नॉट और बीटा वन की वैल्यू होगी ना तो हमारी ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो बीटा नॉट एंड बीटा वन आर रिफर्ड टू एज द पैरामीटर्स ऑफ द मॉडल। ठीक है, बीटा नॉट और बीटा वन जो है वो इस इक्वेशन के पैरामीटर्स हैं। एंड epsilon, the Greek letter epsilon is a random variable referred to as the error term। अब एरर टर्म्स आपकी कुछ भी हो सकती हैं। The error terms accounts for the variability in y that cannot be explained by the linear relationship between x and y। देखिए एरर टर्म हम लोग इसलिए लेते हैं, सपोज करें आपने दुकान खोली, फिर वहां पे स्ट्राइक होगी तो कुछ दिन सेल नहीं हो पाई। ठीक है, तो ऐसे अनवांटेड फिनोमेना को कवर करने के लिए आप एरर टर्म रखते हैं। The population of all almond restaurant can be viewed as a collection of subpopulation, one for each individual value of x. For example, one population subpopulation consists of all almond restaurants near college location campuses with 8,000 students. Another subcampus of all consists of all almond restaurants near college campus with 9,000 and so on. अब देखें हमारे पास क्योंकि 5 रेस्टोरेंट थे, एक रेस्टोरेंट में के करीब जो कॉलेज था उसकी स्ट्रेंथ थी 8,000 स्टूडेंट्स की। दूसरा जो रेस्टोरेंट था उसके नज़दीक जो कैंपस था उसकी स्टूडेंट्स की तादाद थी 9,000।
और इसी तरह तीसरे कैंपस की डिफरेंट थी, चौथे कैंपस की डिफरेंट थी, इस तरह करके। ठीक है, तो अब जो तादाद है, जो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है, वो इंडिविजुअल है और वो हर एक्स है। ठीक है, इंडिपेंडेंट हमारे लिए। और इसी तरह जो नियर कैंपस हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है, वहां पे सेल्स भी डिफरेंट है, तो वाई भी इंडिविजुअल है। तो इस हिसाब से each distribution of y values has its own mean or expected value. The equation that describes how the expected value of y, e of y, is related to x is called a regression equation. तो जब आप अपने रिग्रेशन इक्वेशन के ऊपर, रिग्रेशन मॉडल के ऊपर, जो ये आपका मॉडल है, इसके ऊपर आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ले लेंगे, तो वो आपकी रिग्रेशन इक्वेशन बन जाएगी। और रिग्रेशन इक्वेशन कैसे बनेगी? ई ऑफ वाई इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स। ठीक है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन में जो बीटा नॉट होता है वो आपका इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, और जो बीटा वन है वो आपका स्लोप होती है। ठीक है, जो बीटा नॉट है वो आपका वाई इंटरसेप्ट है, और जो बीटा वन होता है वो आपकी स्लोप होती है। ठीक है, देखिए कैसे। जब भी आपके पास कोई डाटा आएगा ना, आप सबसे पहले उसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ग्राफ से आपको पता चलेगा कि वो जो डाटा का बिहेवियर है वो है किस तरह का। तो आपके पास क्या हुआ, वाई एक्सिस पे एक्स है, एक्स एक्सिस पे एक्स है, वाई एक्सिस पे वाई है। आपने डॉट्स लगाए, अगर तो आपकी वैल्यूज का रिलेशनशिप सीधा बन रहा है, तो इसका मतलब है पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है। ठीक है, लीनियर का मतलब है कि सीधी लाइन से अगर बनेगा ना तो वो लीनियर है। इसी तरह आप देखें दूसरी ग्राफ के अंदर, दूसरी के अंदर एक्स और वाई है। अब आपकी स्लोप ऊपर से नीचे आ रही है, तो ये स्लोप जो है, स्लोप बीटा वन जो है वो नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप है। और अगर आपका तीसरी डायग्राम में देखिए, एक्स एक्सिस पे एक्स हो, वाई एक्सिस पे वाई हो, और अगर आपकी इरिगेशन इक्वेशन बिल्कुल सीधी हो, ठीक है, तो तब क्या होगा, कोई रिलेशनशिप भी नहीं होगा आपके दोनों वेरिएबल्स के दरमियान, और बीटा वन क्या हो जाएगा, आपकी स्लोप क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो जब आपकी लाइन सीधी बनती है, इस हवाले से आप उनको लीनियर कहते हैं। और जो एस्टिमेटेड डिक्रेशन इक्वेशन होती है, दैट इज वाई कैप इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स। तो ये वाली इक्वेशन बेसिकली हम लोग यूज करेंगे अपनी कैलकुलेशंस के अंदर। वाई कैप इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स। The graph of the estimated simple linear regression equation is called the estimated regression line. बीटा नॉट जो है वो आपका y इंटरसेप्ट है, और बीटा जो है वन है वो आपका स्लोप है। अच्छा देखिएगा, इस डायग्राम को समझने की कोशिश करिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या किया आपने, आपने दो वेरिएबल्स का ना रिलेशनशिप फाइंड करना था। ठीक है, उस रिलेशनशिप में को फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए था, रिग्रेशन मॉडल चाहिए था। दैट इज वाई इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, उसके बाद अब इसकी रिग्रेशन मॉडल की कैलकुलेशन के लिए रिग्रेशन इक्वेशन आपको चाहिए थी। रिग्रेशन इक्वेशन आपको चाहिए ई ऑफ वाई इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स। ठीक है, ये चाहिए था। अब इस इक्वेशन के अंदर दो अननोन पैरामीटर थे जिनकी वैल्यूज का हमें पता नहीं था, तो वो कौन से थे, बीटा नॉट और बीटा वन। अब वो कैसे कैलकुलेट होंगे,
उन ये बीटा नॉट और बीटा वन की कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या लेंगे, सैंपल डाटा लेंगे। ठीक है जी, बीटा नॉट और बीटा वन की कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि ये जो बीटा नॉट और बीटा वन है ये हमारे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करें। हम तो हमारे पास तो पॉपुलेशन है नहीं, हमारे पास तो सिर्फ सैंपल है। ठीक है, हमारे पास तो सिर्फ सैंपल, तो हमने क्या किया, सैंपल डाटा लिया। सैंपल डाटा लिया, x1 आ गया, x2 आ गया, y आ गया, जो डिपेंडेंट वेरिएबल था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, उसकी कुछ वैल्यूज आ गई। उन वैल्यू सैंपल डाटा की बेस के ऊपर जो आपने कैलकुलेशन की वो क्या थी, एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन कहलाई। और वो क्या थी, y कैप इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स की। ठीक है, अब इनमें से आपने बीटा नॉट और बीटा वन की वैल्यू फाइंड कर ली, जो कि आपके सैंपल स्टैटिस्टिक थे, बीटा नॉट और बीटा वन। बीटा नॉट और बीटा वन ने प्रोवाइड एस्टिमेट ऑफ बीटा नॉट एंड बीटा वन, यानी कि जो सैंपल के आपके रिजल्ट्स थे वो ही आपके पॉपुलेशन के रिजल्ट्स को आइडेंटिफाई कर रहे थे। ठीक है जी, तो आपने बेसिकली क्या किया, अपने सैंपल डाटा की बेस के ऊपर एनालिसिस करके पॉपुलेशन के मुतालिक आपने रिजल्ट्स ड्रॉ किए। ठीक है, सैंपल की बेस के ऊपर आपने रिजल्ट्स निकाले और उन रिजल्ट्स की बेस के ऊपर आपने अपनी पॉपुलेशन के मुतालिक चीजें जो है वो ड्रॉ कर ली। ठीक है, अच्छा जी, लीस्ट स्क्वेयर मेथड। The least square method is a procedure for using sample data to find the estimated regression equations. अब हम लोगों ने बात की थी कि ये बीटा नॉट और ये वाला देखें आप लोग, ये जो है एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन जो सैंपल की है, जो इसमें बीटा नॉट और बीटा वन की वैल्यू है, ये हम लोग कैसे निकालेंगे। इसको फाइंड करने के लिए काफी मेथड्स है, मेथड ऑफ मोमेंट्स है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर है, ठीक है, और भी एक दो मेथड है। हम लोग जो सबसे आसान मेथड है वो यूज करेंगे, उसको कहते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स। अब लीस्ट स्क्वेयर करता क्या है, देखें, ये हमारे पास 10 रेस्टोरेंट्स हैं। ठीक हो गया जी, and the least square method is a procedure for using the sample data to find the estimated regression equation. लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या करता है, एक प्रोसीजर है जो क्या करता है, सैंपल डाटा को यूज करते हुए एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करता है। टू इलस्ट्रेट द लीस्ट स्क्वायर मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए, सपोज डाटा वर कलेक्टेड फ्रॉम अ सैंपल ऑफ 10 आर्मड पिज्जा पार्लर्स रेस्टोरेंट लोकेटेड नियर कॉलेज कैंपस। ठीक है, for the ith observation or the restaurant in the sample, x is the size of the student population in thousands and y is the current quarterly sales in thousands. The value of x and y for the 10 restaurants are the sample are summarized by this. देखिए, ये आपका 1 2 3 4 5 6 8 9 10 ये आपके रेस्टोरेंट है। ठीक है, पहले रेस्टोरेंट के करीब जो स्टूडेंट पॉपुलेशन है वो कितनी है, 2 है, और ये थाउजेंड्स में है, यानी कि 2 का मतलब है 2000 पॉपुलेशन है। दूसरे रेस्टोरेंट के नज़दीक 6000 है, 6 है तो 6000 पॉपुलेशन है, इस तरह करके है। और जो पहला रेस्टोरेंट है उसके करीब जो स्टूडेंट पॉपुलेशन है वो 2000 है, और उसकी जो क्वार्टरली सेल्स है वो आपकी 58,000 है। तो इस तरह करके डाटा जो है वो लिया गया है। समझ गए, डाटा को दोबारा समझिएगा। ये 1 2 3 4 जो है ये रेस्टोरेंट के नंबर हैं, जस्ट 10 रेस्टोरेंट्स हैं, और हर जो नंबर है उसके सामने स्टूडेंट पॉपुलेशन और उस जो उसकी क्वार्टरली सेल्स है वो दे दी गई हैं, और ये दोनों जो हैं ये थाउजेंड्स में है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने रिग्रेशन इक्वेशन डेवलप करनी है। हमारे पास डाटा आ गया, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, आप बनाएंगे स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम का मतलब ये होता है जी कि आप
जो x की वैल्यूज हैं उनको x एक्सिस पे रखेंगे, जो y की वैल्यूज हैं उनके y एक्सिस पे रखेंगे। जैसे आपने x एक्सिस पे 0, 2, 4, 6, 8 अप टू 26 तक रखा, इसी तरह y के हवाले से आपने क्वार्टरली सेल्स। तो देखें हमारे पास पहला क्या था, x की जब 2 वैल्यू है तो y की सेल्स कितनी है 5800, तो हमने 2 पे क्या रखा, 2 पे 58 को पॉइंट डॉट लगा दिया। इसी तरह जो दूसरा था उस पर देखें आपने क्या किया, दूसरे रेस्टोरेंट की पॉपुलेशन स्टूडेंट 6 थी और उसकी वैल्यू क्वार्टरली सेल्स क्या थी 105 थी। तो यहाँ पे देखें दूसरे पॉइंट पे 6 थी तो उसकी हम लोगों ने 105 पे जाके डॉट लगा दिया। तो इस तरह करके आपने डॉट लगाए। अब डॉट से डॉट ये जो है ये हमारी इस डायग्राम को स्कैटर्ड डायग्राम कहते हैं। तो आपका जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा, जो भी आपको डाटा दिया जाएगा सबसे पहले आप उसका स्कैटर्ड डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि स्कैटर्ड डायग्राम क्या होगा, स्कैटर्ड डायग्राम आपको जो हम लोगों ने ऊपर ग्राफ्स पढ़े हैं उस हवाले से आपको एक रिलेशनशिप बता देगा कि आपके डाटा का रिलेशन क्या है। ठीक है, अगर दोनों वैल्यूज एक्स और वाई ऊपर की तरफ जा रही हो तो आपका पॉजिटिव रिलेशन होता है, अगर दोनों नीचे की तरफ आ रही हो तो जो आपका वेरिएबल्स होता है उनका नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो इसमें देखें क्योंकि दोनों वैल्यूज आपकी दोनों ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप हुआ। ठीक है, अच्छा फिर देखिए विद देयरफॉर चूज, हमने अब क्या करना है, हमने इक्वेशन डेवलप करनी है y कैप इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स की। इसमें y क्या है, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्वार्टरली सेल्स फॉर द ith रेस्टोरेंट। बीटा नॉट क्या है आपका y इंटरसेप्ट है। बीटा वन क्या है आपका स्लोप ऑफ द एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन है। और x आपका क्या है, साइज ऑफ द स्टूडेंट पॉपुलेशन है। ठीक होगा जी, तो आप लोग करेंगे क्या, ये फार्मूले हैं आपके पास बीटा न। अब इस इक्वेशन में हमें पता है कि अगर हमारे पास बीटा नॉट, हमें इक्वेशन इसीलिए सॉल्व कर पाएंगे जब हमारे पास बीटा नॉट और बीटा वन की वैल्यू आएगी। अब बीटा नॉट और बीटा वन कैसे फाइंड किया जाए, तो बीटा नॉट और बीटा वन के लिए फाइंड करने के लिए ये दो फार्मूलाज हैं। बीटा वन दैट इज इक्वल टू समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस वाई बार का बीटा वन that is summation x minus x bar multiplied by y minus y bar divided by summation x minus x bar का स्क्वायर। और बीटा नॉट किस तरह फाइंड होगा, y बार माइनस बीटा वन x बार। और y बार आपका किस तरह कंप्यूट होगा, समीशन x y ओवर n, और x बार जो है वो समीशन x ओवर n। तो देखते हैं कि आपकी कैलकुलेशंस किस तरह देखें। ठीक है, y बार आपका किस तरह कैलकुलेट होगा, समीशन एक्स बार आपका किस तरह कैलकुलेट होगा, समीशन एक्स ओवर एन। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए हमारे पास ये डाटा था एक्स और वाई के साथ। हमें सबसे पहले क्या चाहिए था, बीटा वन का फार्मूला। बीटा वन का फार्मूला क्या है आपके पास, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो हमें एक्स बार चाहिए, तो एक्स बार आपने निकाल लिया किस तरह, एक्स बार समीशन एक्स ओवर एन आएगा आपका पास। समीशन एक्स क्या है आपका 140 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो आपके पास 14 आ जाएगा। वाई बार आपके लिए 1300 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो आपके पास ये वाई बार आ गया, ये एक्स बार आ गया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या चाहिए, समीशन एक्स माइनस एक्स बार। तो आपने 2 माइनस 14 किया तो माइनस 12 आ गया, 6 माइनस 14 किया तो माइनस 8 आ गया, एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम आ गया। वाई बार के लिए 58 माइनस 130 किया तो माइनस 72 आ गया, वाई माइनस वाई बार का कॉलम आपके पास आ गया। आपको चाहिए था एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, आपने आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, जो आपके पास आंसर आया वो क्या था, समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। और अगला आपको क्या चाहिए, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो माइनस 12 का आप स्क्वायर करोगे तो 144 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आ जाएगा। ये आपका एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो आप देखें बीटा वन का आपके को क्या फार्मूला था, समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स बार। तो हमने
एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार का हमारे पास क्या था समीशन 2840 और डिवाइड बाय 568। तो हमने वैल्यू रख दी, बीटा वन हमारा 5 आ गया। अच्छा बीटा वन अगर आपका पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव स्लोप, अगर नेगेटिव आए तो नेगेटिव स्लोप। ठीक है, इसमें परेशान नहीं होना, पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ आपका रिलेशनशिप शो कर रहे होंगे। ठीक है, अब आपको बीटा नॉट की वैल्यू फाइंड करनी थी। बीटा नॉट क्या है, वाई बार माइनस बीटा वन एक्स बार। तो बीटा नॉट के लिए आपको पहले बीटा वन फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, वाई बार आपने ऑलरेडी कंप्यूट किया हुआ है 130 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 14 और ये आपका आ गया 16। तो आपने क्या किया, सिर्फ आपकी जो रिक्वेशन इक्वेशन थी बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स, अब आपके पास बीटा नॉट की वैल्यू क्या है 60 है, बीटा वन की वैल्यू क्या है 5 है, तो आपने एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन बना दी। ये आपकी एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन है, समझ रहे हैं। द स्लोप, अब इसमें इसकी इंटरप्रिटेशन सुनिएगा क्या होगा। द स्लोप ऑफ द एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन, जो स्लोप है दैट इज बीटा वन इज इक्वल टू 5 इज पॉजिटिव, जिसका मतलब क्या होगा, इंप्लाइंग दैट एज स्टूडेंट पॉपुलेशन इंक्रीज सेल्स इंक्रीज। मतलब ये होगा अगर ये बीटा वन जो आपकी स्लोप है वो पॉजिटिव होगी तो उसका मतलब ये होगा कि आपका स्टूडेंट अगर बढ़ेगा तो आपकी सेल्स भी बढ़ेंगी। इनफैक्ट वी कैन कंक्लूड based on sales measured in thousand and student population in thousand that an increase in the student population of 1000 is associated with an increase of 5000 in expected sales। मतलब क्या हुआ कि अगर आपके 1000 स्टूडेंट इंक्रीज करेगा ना तो इसका मतलब है आपकी सेल्स कितने कितने टाइम्स इंक्रीज होंगी, 5% इंक्रीज होंगी। समझ रहे हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपने एस्टिमेट लगाना है, ये जो सारी है ना 60 जो है, in fact if you believe the least square estimated regression equation adequately describes the relationship between x and y, it would seem reasonable to use the estimated regression equation to predict the value of y for a given value of x। अब आप जो है वो सेल्स किसी भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बेस के ऊपर प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि अगर इस कॉलेज में फर्ज करें 160 16,000 स्टूडेंट्स होगा तो हमारी सेल्स कितनी होगी। वही एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी वांटेड टू प्रिडिक्ट द क्वार्टरली सेल्स फॉर अ रेस्टोरेंट टू बी लोकेटेड नियर कैंपस विद 16,000 वी वुड कंप्यूट। आपने आपने क्या 16,000 था ना, तो क्योंकि हम लोग सारी वैल्यूज थाउजेंड में ले रहे थे तो हमने 16 लिया, तो आंसर क्या आया 140। इसका मतलब क्या हुआ, hence we would predict quarterly sales of 140,000 for this restaurant। ठीक है, यानी कि आपने रेस्टोरेंट खोले बगैर आपने प्रिडिक्शन कर ली कि अगर मैं यहाँ पे कॉलेज के करीब, किसी कॉलेज के करीब जहाँ पे 16,000 पॉपुलेशन होगी उसके करीब खोलूंगा तो मेरी जो सेल्स होगी वो 140,000 होगी। और ये आपने क्या किया, ये ग्रीन कलर की आपने लाइन जो है ना ये लीनियर लाइन आपकी, और ये लाइन जो है वो आपकी एस्टिमेटेड लाइन है वाई कैप इज इक्वल टू 60 प्लस 5x, जहां पे बीटा वन जो है वो आपकी स्लोप 5 है और बीटा नॉट जो है वो 60 है, यानी कि 60 से लाइन स्टार्ट हो रही है जिसको आप इंटरसेप्ट करते थे और 5 के ऊपर स्लोप है आपकी। ठीक है, तो इस तरह करके आपका है, आप इनके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इनके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। आप लोग कोशिश करिएगा, अगर कोई नहीं समझ आएगी तो इंशाल्लाह हम लोग इनको नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, स्कैटर डायग्राम बनाएंगे, देन आप लोग रिग्रेशन इक्वेशन